Good morning, church. सुप्रभात कलीसिया। I hope that you all must have a wonderful week. और मैं सब विश्वास करता हूँ कि आपका एक उत्तम हफ्ता होगा। And today we're going to enter into another week. और हम फिर से परमेश्वर ने हमें एक अनुमति दिया है कि हम एक और हफ्ते में प्रवेश करें। And God will definitely bless you with His presence and with the Word of God. और आज निश्चय परमेश्वर आपको उसकी उपस्थिति और उसके वचन के द्वारा आपको आशीषित करेगा। Definitely you're going to see the goodness and the mercy of the Lord. आप निश्चय आप परमेश्वर के भलाई उसके करुणा को आप देखेंगे। Like David had used to say, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. जैसे दाऊद कहता था कि निश्चय निश्चय भलाई करुणा मेरे संग हो लेंगी और मैं परमेश्वर के भवन में हमेशा के लिए निवास करूंगा। Amen, hallelujah. I believe that you all may going to see the wonderful works of God in this week. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब परमेश्वर के अद्भुत कार्य को ये हफ्ते आपके जीवन में देखेंगे। Definitely you going to testify about all the goodness of the Lord. और निश्चय आप परमेश्वर के भलाई के बारे में आप एक गवाही देंगे। Amen, hallelujah. Just come into the presence of the Lord. आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति Just में lift up जाएं, His name. उसके नाम को उठाए। Just lift up His name, because the Bible says He enthroned on the praises of His क्योंकि people. बाइबल कहता है कि वो अपने लोगों के स्तुति पे विराजमान होता है। Yes, He is enthroned on the praises of His people. हाँ, वो अपने लोगों के स्तुतियों पे विराजमान When we होता है। praise Him, जब हम उसके स्तुति करते हैं, the उसकी आराधना presence of करते हैं, God comes down. परमेश्वर की उपस्थिति नीचे आती है। Yes, the presence of God comes down. हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति नीचे आती And है definitely you're going to sense the presence of God. और आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे। You're going to say, yes, God, you are here today, right now, oh और God. आप कहेंगे कि हाँ परमेश्वर आप इधर है ये क्षण। Yes, Lord. We bless your holy name, Jesus. हम आपके पवित्र नाम को आशीष करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से। Yes, Lord. Encourage us by the power of your Holy Spirit. तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हमको उत्साहित कर तेरी आराधना करने That के we may लिए, be able to sing a song for you, O God. कि हम तेरे लिए एक गीत को गाने पाए, Yes, only for you, Jesus. सिर्फ तेरे लिए, To glorify the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाने के लिए। Yes, thank you, Lord. धन्यवाद Thank you, परमेश्वर, Jesus. धन्यवाद We यीशु, praise your name, O Lord. तेरे नाम की स्तुति करते We हैं। say thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen and amen. Amen, amen. Aye, we going to worship the Lord. आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, We going to praise His name. उसके नाम की स्तुति करेंगे हम। You can praise Him with the tongues. We can praise Him with the mouth, with the lips. Whatever the language that God has given to you, with that language you can praise Him. आप परमेश्वर की आराधना अन्य भाषा के द्वारा आप अपने होठों से आप ध्वनि बना के आप अलग अलग प्रकार से उसकी आराधना कर सकते हैं। Praise His holy name. उसके नाम की स्तुति Just करें, lift up His holy name. उसके नाम को ऊंचा Oh, उठाएं। riraba, shakaraba, riaba, raba, sakaraba. धन्यवाद प्रभु जी. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We praise Thank you, you for Lord. everything. You are here, O God, in the midst of us, O God. You are going to give us, O God, a victory, my Father, O God. When your presence comes, O God, the victory comes, O God, along with that, O God. We praise you. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We lift up your holy name, Jesus. In Jesus' name, O Lord. Mighty is our God, Mighty is our King, mighty is our Lord, He's the ruler of everything. Mighty is our God, mighty is our King, mighty is our Lord.
He's the ruler of everything. His name is higher, higher than any other name. His name is greater. He created everything. His name is higher, higher than any other name. His name is greater. He created everything. Yes, God. Let's lift up God's name today. आइए हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं. As we worship the Lord, जैसे हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, we enter the holies of holies by the blood of the Lamb. और हम उसके पवित्र महापवित्र स्थान में उसके लहू के द्वारा प्रवेश करते हैं. उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आदर करते हैं तुझसे प्रार्थना. मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो. मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो. आराधना, 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 आराधना. Oh Jesus, we lift up your holy ले चल name. मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां. ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास. ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ. पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ. प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ. पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ. प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा. मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा. जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए. जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए.
तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। हाँ प्रभु जी, अगर अगर हम आना चाहते हैं प्रभु, तो वो सिर्फ तेरी उपस्थिति में आना चाहते हैं प्रभु। तेरी सुंदरता को निहारना चाहते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, तेरे सुंदरता का बखान करना चाहते हैं प्रभु राजा। प्रभु जी, हमें तू प्रभु राजा ऐसे वर्ड्स दे प्रभु राजा, ऐसे वचन दे प्रभु राजा, ताकि हम तेरी सुंदरता को और भी प्रभु जी अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी तेरी सुंदरता के बारे में बोल सके प्रभु राजा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु राजा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु कि तू हमारे मध्य में है। तूने कहा है प्रभु जी, जहाँ 2 या 3 भी मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं तुम्हारे संग हूँ प्रभु राजा। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु राजा कि तू हमारे संग है प्रभु राजा, तू हमारे साथ है प्रभु जी। तू कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है प्रभु राजा। पर धन्यवाद करते हैं तेरे इसी वचन के लिए प्रभु राजा कि तू सदा सदा प्रभु जी हमारे संग है प्रभु जी। चाहे मैं घोर की तराई से होकर भी क्यों न गुजरूं, तू मेरे साथ है प्रभु राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा, धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद, आमीन। Good morning, church. Today I have a word from God for each one of you today watching this video. मेरे पास एक वचन है परमेश्वर से आपके लिए. I want to share from the life of a boy called David in the Bible. एक छोटा लड़का, एक चरवा दाऊद के जीवन से मैं एक चीज़ आपको आज बताना चाहता हूँ. No matter he looked like a small boy, his beginnings was very humble. His beginning was a poor shepherd boy who was even forgotten by his own father. उसकी शुरुआत एक छोटा 16-17 साल के एक चरवा लड़का के साथ चालू हुआ, जो वो एक गरीब व्यक्ति था. यहाँ तक कि उसके पिता को भी याद नहीं था कि उसका एक बेटा है. But God did mighty things through his life. लेकिन परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा महान कार्य किए. And I want to share one secret of David. और मैं दाऊद के एक रहस्य को आपकी ज़िंदगी से बांटना चाहता हूँ. Even though his beginning was not that great, उसकी शुरुआत इतने खास नहीं थी, but David died as a history maker. लेकिन दाऊद ने इतिहास को हिला के रख दिया. One of the most successful kings of all time was King David. एक में से सबसे महान और सबसे सक्सेसफुल राजा जो इतिहास में लिखा गया है वो दाऊद है. And what happened? Why he was so great? Why he was so successful? इतना महान, इतना शक्तिशाली क्यों हुआ वो? Why did the kingdom of Israel flourish under his rule? क्यों जो इज़राइल का राष्ट्र है उसके राज्य के नीचे इतना वो इतना संपन्न हुआ? It's because of the God who David served. वो जो इज़राइल का परमेश्वर जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यावे है, जिसमें दाऊद ने अपने विश्वास कर रखा, उसके वजह से है. Today I want to share when David, जब दाऊद
was anointed by the prophet Samuel to be the next king of Israel. जब परमेश्वर ने दाऊद सैमुअल नबी को बोला था कि वो दाऊद का अभिषेक करे जो इज़राइल का अगला राजा होगा, वो in that time David was called by God to be the next king of Israel. जो दाऊद था उसको परमेश्वर ने बुलाया था जब वो एक छोटा सा चरवा का काम कर रहा था कि दाऊद मेरे राष्ट्र का वो राजा रहेगा. और वो समय जो द करंट किंग ऑफ इज़राइल जो हु वाज सॉल, जो इज़राइल का जो राजा तब था जिसका नाम सॉलुस था, God had rejected Saul because of his disobedience towards him. परमेश्वर ने शाऊल को नकार दिया क्योंकि उसके आज्ञाकारिता की वजह से. And what happened was that this king Saul got so jealous of David because he killed Goliath. और जो सॉल था वो इतना जलन से भर गया दाऊद के प्रति क्योंकि जब उसने गोलियत को मारा था तब क्या हुआ था, सब लोग कह रहे थे that Saul has killed 1,000 and David has killed 10,000. और सब लोग ये बोल रहे थे कि शाऊल ने 1,000 को मारा और दाऊद ने 10,000 को मारा. What happened? Saul started getting jealous. सॉलुस जो था वो दाऊद से डरने लगा, बाइबल कहता है, और वो जलने लगा क्योंकि वो जानता था कि ये लड़के में वो खासियत है जो मुझ में नहीं है. That is what Saul saw in David, and that is the reason Saul got scared. I want to tell you, you may have critics out there. मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके बाहर नुक्ताचीनी करने वाले लोग रहेंगे, जलन करने वाले लोग रहेंगे, who will be jealous of you. But don't be afraid because it is something that you are carrying that is shaking the life of people. क्योंकि आपके अंदर जो आप लेके चल रहे हैं वो कुछ लोगों को हिला के रख दे रही है. David had the presence of God with him. दाऊद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति थी. The Bible says that when Samuel anointed David, जब नबी शमूएल ने उसने दाऊद का अभिषेक किया, the Spirit of God came powerfully upon David. जो पवित्र आत्मा था वो दाऊद पे और भी सामर्थ्य रूप से आया. And Saul noticed that the Lord is with David. और शाऊल ने वो बात को देखा कि परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर दाऊद के साथ है. If you can ever imagine, David had his own army of 400 men. And with those 400 men, he destroyed kingdoms. Just with 400 men. सिर्फ 400 लोगों के साथ की जो सेना थी, दाऊद ने फिलिस्तीन, असीरिया, ये अलग अलग प्रकार के राष्ट्रों को उसने हरा दिया. The Bible says when David raided or when he attacked a village, not one man was left alive to come and tell what happened. जब दाऊद ने एक गांव पे यदि उसने हमला किया, उसने वो जगह पे ऐसा तबाही कर दिया उसके शत्रुओं पे कि एक आदमी भी बचा नहीं था आके बोलने के लिए कि यहाँ पे क्या हुआ है. पूरे लोग वाकई खत्म. He had such success in his life because God was with him. But what happened during that time? लेकिन वो समय में क्या हुआ कि सॉल जो था वो दाऊद का जीवन लेना चाहता था. He wanted to take the life of David. He was behind him day after day, searching and hunting for the life of a small boy. दिन पे दिन और रात पे रात शाऊल दाऊद का जीवन लेने के लिए वो पीछे था. I want to tell you, Satan is today your enemy. He may be behind you day after day,
नाइट आफ्टर नाइट ही वॉन्ट्स टू टेक योर लाइफ। हो सके शैतान आज आपका वो शत्रु है, वो दिन पे दिन रात पे रात आपका जीवन लेने के पीछे है। But you know what? I love one thing which David writes. It's so beautiful. And David says that God, day after day, I'm being hunted for my life. But I trust in your unfailing love. दाऊद ने कहा कि परमेश्वर, दिन पे दिन लोग मेरा जीवन लेना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरे प्रेम में, I trust in your unfailing love. तेरे प्रेम और तेरे करुणा में मैं विश्वास करता हूँ। And that is what sustained the life of this man. I want to share, we all know that the book of Psalms is written by David. हम सब जानते हैं कि भजन संहिता की किताब दाऊद के द्वारा लिखा गया था। In Psalms 42, it's a beautiful psalm. भजन संहिता 42 एक बहुत खूबसूरत एक भजन है। It's written, we can read it in Hindi, as the deer pants for streams of water, so I long for you, O God. जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। You know, in the midst of the trouble, कठिनाइयों के बीच में भी दाऊद परमेश्वर का प्यासा था। Remember one thing, you know, Satan, through all the plans and schemes of his, that he comes to attack your life in the form of financial problem, depression, broken families, he wants to divert your attention from God. शैतान जो भी अपने स्कीम्स के साथ आता है, जो आर्थिक परिस्थिति, टूटे हुए परिवार और अन्य प्रकार की बातें से, वो आपका मन को परमेश्वर से हटाने की कोशिश कर रहा है, सो दैट यू कीप थिंकिंग अबाउट योर प्रॉब्लम एंड नॉट अबाउट गॉड, ताकि आप अपने समस्या के बारे में सोचते रहे, ना कि प्रभु के बारे में। बट द लाइफ ऑफ डेविड इज सो इंस्पायरिंग। दाऊद का जीवन इतना हमें उत्साहित करता है that he cried out for the living God. And you know what does this means? इसका मतलब क्या है? Why is he using the example of a deer and water? क्यों इस तरह का उदाहरण उसने लिया हिरनी और पानी के लिए? When the deer is spotted by a predator, जब एक हिरनी अपने शत्रु, हम बोल सकते हैं एक सिंह के द्वारा, यदि वो सिंह वो दिख गया, तो हिरनी क्या करता है, वो भाग के, द डियर रन्स एंड द डियर रन्स इन स्ट्रीम्स ऑफ वाटर. It looks for the streams of water, and when the deer goes in the streams of water, the deer loses his fragrance. And when the deer loses his fragrance, the lion cannot find him, because these predators, they track down their prey by the smell. जो हिरनी है वो पानी के लिए तरसती है और पानी में जाके छुप जाती है, क्योंकि वो पानी में हिरनी अपने सुगंध को वो छोड़ देता है पानी में, और उस पे पानी का सुगंध आ जाता है, और जो सिंह है उसको ढूंढ नहीं पाता है फिर. This is what David did. When David was in trouble, David sought for the presence of God. And in the presence of God, which is the living water, you die to yourself. You lose your fragrance, which is your old nature, your bad habits, whatever distracts you and is a sin against God, you lose it in the presence of God, and God protects your life. जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में वो जीवन का जल है जो यीशु मसीह है, आप अपने सुगंध को छोड़ देते हैं. वो सुगंध क्या है? आपकी लतें, आपके बुरे आदतें, आपके जो पाप है जो आप परमेश्वर के प्रति कर रहे हैं, जो भी बात आपका है, जो यू डाई टू योर सेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एंड यू आर हिडन इन क्राइस्ट.
आप अपने आप को मसीह में आप छुपा लेते हैं और आप अपने आप में मर जाते हैं और मसीह आपके द्वारा जीता है. This is what Paul meant when he said that I daily crucify myself with Christ, and it's no longer I who live, but Christ Jesus who lives within me. And that is what people saw, that this is not the same Paul who persecuted the church, but this is Christ who's living in Paul now. Now he's no longer Saul, but he is Paul. His name was changed. He became a new man because he found his identity in the presence of the Lord Jesus Christ. क्या होता है जब जो पौलुस था, जो बाइबल में वो कलीसिया को सताता था, वो कलीसिया को के लोग को मारता था, लेकिन जब वो यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई, जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह की उपस्थिति के साथ हुआ, जब पौलुस जो था वो पौलुस अपने आप में मर गया. उसकी जो सुगंधी यानी उसकी जो आदतें, जो पौलुस था, पौलुस मर गया और वो कहता है कि अभी मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीता है. मेरा पुराना मनुष्य मर चुका है और अभी देखो नया मनुष्य आ चुका है जिसका नाम यीशु मसीह है. And that's when you are hidden in Christ. How you will know when you are hidden in Christ, people will recognize the nature of Christ in you. That's when God is your refuge. If I hide my food, someone gave me this good example. If you put a food in the refrigerator, no one can see the food. You can only see the refrigerator. यदि मैंने खाने को फ्रिज में रखा, कोई खाने को नहीं देख पाएगा, लेकिन वो बाहर से तो फ्रिज को देखेगा. लेकिन वो फ्रिज के अंदर, within the refrigerator, the food is preserved. The food is fresh. It's out of the harm's way of flies and bacteria, and same is in the presence of God. In Christ you are preserved, in Christ you are fresh, in Christ you are made anew every day, and you are safe from the plans of Satan. वही होता है जब आप मसीह में हैं, तब आपका जीवन शैतान की चीजों से वो तरोताजा रहता है, वो प्रोटेक्टेड रहता है. जैसे खाना फ्रिज में हम उसको तरोताजा रखने के लिए कहते हैं, उस पर मक्खियाँ नहीं बैठती है, उस पर बैक्टीरिया नहीं आता है. वही चीज यीशु मसीह में होता है. उसकी उपस्थिति में आपका जीवन शैतान के हर एक जालों से बचा के रहता है. I want to share something about David. When the King Saul was after the life of David, he wanted to kill the life of David day after day, and for months together. Saul उस महीनों तक के दाऊद का जीवन लेने के लिए वो उसके पीछे था. But you know what happened? Saul could not find David. Saul उस दाऊद को ढूंढ ही नहीं पाया. Shaul. Let's open the Bible. 1 Samuel or 1 Samuel 23 verse 13. पहला शमूएल उसका 23 उसका 14. We'll open the 14. David now stayed in the strongholds of the wilderness. तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ों देश के जीप नामक जंगल में रहा. And in the hill country of Ziph. शाऊल उसे And Saul hunted him day after day, but God did not let him be found. बट शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसके हाथ में न पड़ने दिया. I love what is written here in English. It's written that that David could not be found by his enemies. कि जो दाऊद था अपने शत्रुओं के द्वारा ढूंढ ही नहीं पाया. You know why? Because he was hidden in God. Every day David never forgot to worship the living God. हर दिन दाऊद भूला नहीं परमेश्वर की आराधना करने से. He worshipped God daily and he cried out for the presence of the Lord. He sought the face of God. दाऊद रोज
परमेश्वर की उपस्थिति के लिए परमेश्वर को खोजा। एंड व्हेन यू सीक गॉड, गॉड ऑनर्स यू बाय कवरिंग योर लाइफ विथ हिज प्रेजेंस। परमेश्वर आपको वो ही ऑनर्स, आपको वो आदर देता है आपको उसकी उपस्थिति में छुपा के। और जब आप परमेश्वर में छुपे हैं, लोग आपको नहीं देख पाते हैं क्योंकि आप परमेश्वर में छुपे हैं। Satan cannot find you there. I want to tell you, coronavirus cannot find you if you are in Christ. Coronavirus आपको नहीं ढूंढ पाएगा यदि आप मसीह में छुपे हैं। Because I want to tell you, sickness cannot be where Jesus is. बीमारी वहां नहीं रह सकती है जहां पे यीशु मसीह है। एपिडेमिक, सिकनेस, एड्स, मलेरिया, यू नेम इट, इट कैन नॉट बी इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड ऑफ होस्ट। वो यीशु मसीह की उपस्थिति में ये सब बीमारियां टिक नहीं पाती है, लेकिन वो उसके उपस्थिति में झुक पाती है। वो आपको हाथ भी नहीं लगा पाएंगी। द बाइबल सेज नो वन कैन इवन टच द हेयर दैट इज ऑन योर हेड विदाउट द परमिशन ऑफ गॉड। That is the security that you are provided by the living God. वो security है जो परमेश्वर आपको देता है। I am not surrounded by 4 bodyguards. मैं 4 bodyguards के द्वारा घेरा नहीं गया हूँ, मेरी सुरक्षा नहीं है। But I am surrounded by the King of Israel. I am surrounded by the Messiah who rose from the dead. मैं उसके द्वारा बचाया गया हूँ। मेरी security उसमें है जो मृत्यु में से जी उठा, उसका नाम यीशु मसीह है। What preserves my life from sickness? What preserves my life from negative thoughts? What preserves my life from the schemes of Satan is only Jesus. ऐसी कौन सी बात है जो मेरी जिंदगी को सारी बातों से बचा के रखती है, नकारात्मक बातों से, शैतान के जाल से? वो सिर्फ यीशु मसीह है। It's only the presence of God. And I love this. No matter you are going through financial problem, you are going through sickness, day after day. But I want to tell you one thing, your enemy cannot get the best of you. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिन पे दिन आप दिख रहे होंगे, आपके पास आर्थिक परिस्थिति आपकी अच्छी नहीं है, आप देख रहे इर्द गिर्द बीमारी चल रही है, क्या करेंगे? दिन पे दिन ये हो रहा है, लेकिन दिन पे दिन एक बात याद रखें, यदि आप मसीह में हैं, यू आर प्रिजर्व्ड इन क्राइस्ट। यदि आप मसीह में हैं, आप बचाए गए हैं दुनिया से। इवन दो यू आर इन दिस वर्ल्ड, यू आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। बाइबल कहती है जबकि हम संसार में हैं, हम संसार के नहीं है, बिकॉज वी आर हिडन इन क्राइस्ट। हम मसीह में छिपे गए हैं। And today I want to encourage you with one thing. As the same God who didn't let David be found by his enemies, जो परमेश्वर ने दाऊद को जो शाऊल था और उसके जो शत्रु थे उसके द्वारा उसको ढूंढ नहीं पाए, that same God will not let you be found by coronavirus. That same God will not let you be found by financial problem. That same God will not let you be found by the plans of Satan, by depression, by anxiety. I come against it in the name of Jesus. वही परमेश्वर आपको कोरोना वायरस के द्वारा कोरोना वायरस आपको वो नहीं ढूंढने देंगे आपको। वही परमेश्वर आपको ऐसे छुपाएगा कि बीमारी, गरीबी, जो आर्थिक परिस्थिति है वो आपको नहीं ढूंढ पाएंगी, क्योंकि वो आपको बचा के रखेगा। Today, whatever problem you are going through, जो भी परिस्थिति से आप होके गुजर रहे हैं, know one thing, that you have a God in whom you can take refuge. ये एक बात को आप जान ले कि एक परमेश्वर है जिसमें आप अपना छुपने का स्थान बना सकते हैं। Lord, I pray today for this word. I pray for each one watching. Let us not be found by enemies. परमेश्वर हर दिन हम ना भूलने पाए तेरी आराधना करने के लिए और तेरी उपस्थिति को खोजने के लिए। Your word says that all who will seek the face of God will be filled with joy and gladness.
No shadow of shame shall cover our faces. I pray God, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, those who have creditors, जिसके पास, जिन लोगों के पास लोगों की उधारी है, जो लोग उनके पास आते हैं और वो शर्मिंदगी से होके गुजर रहे हैं, होने पाए कि वो शत्रु के ये जाल से वो ढूंढने ना पाए. I pray for those people, Lord, provide them, Lord. Provide them, God, have mercy upon your children, Lord. The righteous shall lack no good thing. I want to ask each one of you as we pray today, that you come in agreement with me as I pray. आप सहमति होके आए, जैसे मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी बीमारी, गरीबी, कोई भी शर्म आपके जिंदगी को ढूंढ नहीं पाएंगी, लेकिन आप मसीह यीशु मसीह में आप छुप पाएंगे. Lord, I thank you for each one watching today. Thank you for the sacrifice of your Son. We bless each one watching. Let your presence surround the life of God. Every plan of Satan, every anxiety, I rebuke its power from the life in the name of Jesus. Amen. Every sickness leave that family. सारी जो बीमारी है वो परिवार को छोड़ के चले जाए. सारी जो टूटापन है परिवार में, जो शराब की आत्मा है, जो गाली गलौज की आत्मा है, वो परिवार को यीशु के नाम से छोड़ के चले जाए. जो अविश्वास की आत्मा है, यीशु के नाम से छोड़ के चले जाए. सारी बीमारी यीशु के नाम से चले जाए ये क्षण. And let the word of God, Lord, endure forever in their hearts. Amen. Preserve them, God. This is the word of God for you today, that my people shall be preserved. You shall be blessed over all people of the earth. As per the word in Deuteronomy, God, let this happen, Lord. Remember your word, remember your promises, and remember your people. We thank you that you are the same God who never changes. Thank you, Jesus. We love you, Lord. In the name of Jesus, amen. Amen. We are coming to the table. आइए हम मेज पे जाएं. This is the table of a covenant. और ये एक वाचा का ये एक जगह है Where Jesus broke his covenant with his 12 disciples, and he said that this is the covenant of mine that I am making with you all. और यीशु मसीह ने अपने देह को, अब उसने रोटी को तोड़ा अपने चेलों के सामने और उसने कहा कि इसके द्वारा मैं तुम्हारे साथ एक वाचा बना रहा हूँ. Lord, we say thank you, Lord, for breaking up your body for each one of us. परमेश्वर, हम कहते हैं धन्यवाद, अपने देह को हम सबके के लिए आपने तोड़ दिया. That you have taken 39 stripes for each one of us, that we all may get healed from deadly diseases. कि आपने वो 39 कोड़े अपने पीठ पे खाए ताकि हम सब जो महारोग से हमें चंगाई मिले. Lord, yes, my Father, oh God, this bread has a capacity, oh God, not only capacity, but I can say that it can preserve us from all harms, from all diseases, oh Lord. और ये जो रोटी और दाखरस है, इसमें वो क्षमता है कि ये हमको सारे बीमारी महारोग से बचा के रखे. Lord, we just say thank you, Lord, for breaking this bread for each one of us, oh God. परमेश्वर, हम कहते हैं धन्यवाद कि तूने ये देह को हम सब के लिए तोड़ दिया. Especially for your church, oh Lord. खास करके तेरे कलीसिया के लिए. That none of the person should find, we should find, oh God, in your church, oh God, with a disease, oh God. ताकि कोई भी व्यक्ति कलीसिया में बीमारी के साथ ना पाया जाए. Lord, we say thank you, Lord, for breaking your bread for each one of us, oh God. धन्यवाद परमेश्वर कि तूने ये रोटी को हम सब के लिए तोड़ा. And we take with a worthy manner, oh God. और इसको हम एक योग्यता से लेते हैं. Lord, we say thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर. And we remember the stripes that you had taken, oh God. तेरे कोड़े को हम याद करके ये खाते हैं. Lord, that we are healed, oh Lord. कि हम चंगे हो चुके हैं. Lord, yes, Lord. By your stripes we are all healed, oh Lord. आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं. Lord, we bless this bread, oh God. ये रोटी को
हम आशीषित करते हैं In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Lord, we lift and you lift up the cup of God and you said, oh God, तूने प्याले की उठा के कहा परमेश्वर this is the new covenant that I am making with you, all of you, ये नए वाचा है जो मैं तुम सब के साथ बना where रहा I हूँ will shed my precious blood to wash away all our sins, oh God. कि तू अपने बहुमूल्य लहू को सबके पापों के लिए बहा देगा। Lord, we say thank you, Lord, that you washed, oh God, your precious blood, that our sins can be washed out completely, oh God. तेरे बहुमूल्य लहू हमारे सारे पापों को धो देता है। Lord, and we become a righteousness of yours, oh God. हम तेरे सामने धार्मिकता के साथ आते हैं। Lord, we say thank you, Lord, that who had no sin became sin for us, so that we may become the righteousness of yours, O कि God. तू जो बिना पाप के था तू पाप बन गया ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। Lord, we bless this cup, O God, धन्यवाद करते हैं as we come, O God. जैसे हम आते हैं Lord, we drink from this cup, O Lord. और हम ये प्याले से पीते We हैं। believe, O God, that we have been made holy and blameless in your sight, O God. हम निर्दोष पवित्र तेरे नजर में बन चुके हैं। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से bless this cup, O Lord. प्याले को आशीषित कर In Jesus' name. यीशु के नाम से आमीन। Those who are celebrating their wedding anniversary and birthdays today and during all this week, और जो अपना शादी की सालगिरह या जन्मदिन आज या ये हफ्ते के दौरान आप मना रहे होंगे तो we would like to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। I will ask Corinne to come forward and pray for all these precious people. और मैं मांगूंगा कि कॉरिन आके ये सब लोगों के लिए प्रार्थना करे। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Father, we pray for all those who are celebrating their birthdays परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं today and during this week, आज आने वाले इस हफ्ते के दौरान, and those who are celebrating their wedding anniversary today and during this week, और Lord. जिसकी शादी की सालगिरह आज या इस हफ्ते के दौरान है। We ask, Lord, that you bless their life and let your kingdom come in their life and your will be done in their life and through their life, O Lord. कि आपका राज्य आने पाए, आपकी इच्छा इनके जीवन के द्वारा होए परमेश्वर। Lord, we ask for your to cover them with your precious blood, and Lord, their whole family, Lord, that you protect them and their families, O Father. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इनके परिवार को बचाए और इनको सुरक्षित रखे। Lord, we bless them in Jesus' name. यीशु के नाम से हम आशीषित करते हैं। Amen. आमीन। We're going to take an offering, अभी हम भेंट लेंगे and we also would like to give you our description of bank where you can put it in the bank also. हम ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बैंक का डिटेल्स देंगे जहाँ पे आप अपना दशवांश और भेंट डाल सकते हैं। Either you can go to Mickey in a medical area, और आप मिक्की के पास जा सकते या फिर आप मिक्की के पास जा सकते हैं जो मेडिकल क्षेत्र में रहता है। and those who are living in Mankapur side and other places, they can go to Wayne Garvin and they can give their offering and tithe also. और जो मानकापुर क्षेत्र के पास रहते हैं तो फिर आप मिस्टर वेन गाविन के पास जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपना दशवांश और भेंट दे सकते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। We'll see you next week. आपको अगले हफ्ते हम देखेंगे In Jesus' name. यीशु के नाम से आमीन।